you will be able to accomplish them nicely if you are good with prompt engineering. And why prompt engineering is important, that will become evident very soon. Because हम कुछ specific चीज लेके अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ हम वो चीज की understand one particular approach, then we'll be able to apply this particular approach in all almost all possible tasks which we can accomplish with the help of not only our chat GPT or Gemini, but with respect to even AI agents also will be able to accomplish more, right? Even right. So that's the whole idea. So let me. अरे ये स्क्रीन जो शो करते हो ये दिखता नहीं है स्क्रीन शेयर. I hope what do you say? My screen is visible now. I am sharing two screens, so it will be visible, right? Hopefully, right? I can verify, right? It's visible. Fine. So, like I mentioned, the broad topic which we are going to discuss in the next 3 hours, right? It's this, right? Effective prompts, custom GPTs, and curriculum design. So let me start with this particular quote, which I already conveyed the core idea of it. Sir, kindly go little slow. Huh? Kindly go little slow. Sure. I haven't started. Don't worry. It's slow hi jayenge. So good idea is something that does not solve just one single problem, but rather can solve multiple problems at once. Sir, please show the first slide, sir. Okay. Yeah. Sure. Thank you, sir. Okay. Okay, so good idea is something that does not just solve one single problem, but rather can solve multiple problems at once. And as teachers, we know this, right? बहुत बार हम जो theorems पढ़ाते हैं या कोई concept पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो concept तक ही सीमित रहे बात, right? वो अलग-अलग जगह पे applicable होता है. So same thing goes with respect to prompt engineering. So the very first idea which I'm going to start with is this particular quote. If I had an hour to solve a problem and my life depended on it, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask. For once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes, right? So of course, with respect to research, this makes a lot of sense. कि रिसर्च प्रॉब्लम अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो शुरू के 1 या 2 साल तो वो सिर्फ ये पता लगाने में लगा देते हैं, राइट? इंक्लूडिंग अस, व्हाट शुड बी द रिसर्च प्रॉब्लम जो सॉल्वेबल होगा कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, इंपॉर्टेंस है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द आर्ट, अदर वर्क्स, एंड देन वी डिसाइड दैट दिस इज द करेक्ट प्रॉब्लम फॉर अस टू वर्क ऑन. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ this is related with prompt engineering. So if I talk about prompting, then let me go to one blank kind of, one can say, text box of chat GPT. So whatever I am going to write over here, formally it's called prompt. If you don't know what is prompt, nothing to worry. Prompt मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखने वाले हैं, जो भी हम बोलेंगे चैट जीपीटी को ये करके दो या वो करके दो, वो पूरी चीज को हम बोलेंगे prompt. बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे गूगल में सर्च करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, एंड इस वजह से पूरा पर्पस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट 4 letters ओवर हियर, देन इट्स सेइंग चैट. चैट का मतलब क्या होता है, राइट? वी डू चैट विद अवर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं. तो उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है. ये कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऊपर फिर रीइटरेशन भी हो सकता है, कुछ हम और भी पूछ सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, गूगल सर्च की तरह यूज करते हैं. कुछ पूछा, कुछ आया, और जो भी आया मिला उससे खुश होके आगे बढ़ गए, या जो आया वो अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया कि ये LLMs AI सब उतना अच्छा नहीं है, मतलब वो नहीं समझता हमें, वो नहीं हमें काइंड ऑफ आउटपुट देता जो हमें चाहिए, राइट? एंड देन वी से दैट AI इज नॉट गुड बिकॉज वो अच्छे से वर्क नहीं करता. सो ये इसलिए हो रहा है कि AI अच्छा नहीं है, या इसलिए हो रहा है कि हमें तरीका नहीं पता कि AI के साथ एक्चुअल में बात कैसे करना. सो आंसर है कि हमें एक्चुअल में तरीका नहीं पता. तो पहले हम फोकस करेंगे तरीके पे, कि अगर कुछ हमें पूछना है, अगर कुछ काम निकलवाना है चैट जीपीटी से या जेमिनी से, तो किस तरह से उससे बात करनी चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए और हमें जो चाहिए वो हमें मिले आउटपुट में, राइट? सो पूरा फोकस हमारा शुरू के जो क्वेश्चन है टॉक का, उस पर यही रहेगा कि कैसे हम ये अकम्प्लिश कर पाए कि इफेक्टिव तरीके से हम लिखें ताकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए. सो बहुत सारी बार क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं फ्रेंड के साथ, कि चैट जीपीटी इज लाइक माय फ्रेंड, और लेट्स से जेमिनी इज लाइक माय फ्रेंड, और व्हाटएवर LLM यू आर यूजिंग इट्स लाइक लेट्स से माय फ्रेंड. सो उसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? लेट्स से यू ऑन वन फाइन डे यू आर फीलिंग ऑड, राइट, और यू आर सैड,
सो आपके फ्रेंड को बस आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, एंड अकॉर्डिंगली ही और शी विल एक्ट, राइट। हमें बताना नहीं पड़ेगा फ्रेंड को कि देखो यार मेरे तो ये दिक्कत है तो कुछ कर दो मेरे लिए, या कहीं बाहर चलते तो अच्छा फील होगा, राइट, व्हाटएवर। बट इन द केस ऑफ चैट जीपीटी दैट इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। मतलब वो समझता तो है, अच्छा काम भी करेगा, बट एक्सप्लिसिटली वी हैव टू मेंशन व्हाट वी आर फीलिंग और व्हाट वी वांट, राइट। सो देयरफॉर टीचर्स कैन बी अ गुड प्रॉम्प्टर विदाउट एनी डाउट, बिकॉज वी आर वेरी गुड विद एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सो हमें एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में कि हमें क्या चाहिए, और उसके तरीके हैं उस पे अब हम फोकस करेंगे। सो सबसे पहला, इफ आई गो बैक टू दिस पर्टिकुलर कोट, सो इससे प्रॉम्प्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पता चलता है, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेट्स से इवन when you say whenever you talk about let's say Instagram or WhatsApp, कोई फ्रेंड को चैट पे कुछ लिखने से पहले आपके दिमाग में होता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। मे बी यू आर प्लानिंग टू गो आउट, राइट, लेट्स से संडे आ रहा है, लेट्स से आपको कहीं मूवी देखने जाना है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमें ये करना है, इसलिए आप उसको मैसेज कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता जब हम यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हम क्या होता है कि जो भी थोड़ा सा भी वीक थॉट जो दिमाग में चल रहा है, जस्ट वो लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। सो वी हैव टू concretely visualize, right? So if I concretely say what's the kind of meaning of the first slide is visualization. You must be able to visualize what you want in terms of output. कि हमें एंड में करवाना क्या है वो पहले विजुअलाइज करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली शुरू हो, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दूं तो बहुत बार क्या होता है कि आपको आउटपुट में सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए था और चैट जीपीटी पूरा रिपोर्ट दे देता है, या आपको आउटपुट चाहिए था एक टेबल फॉर्म में, बट चैट जीपीटी आपको दे रहा है एक कैप्शन जितना आउटपुट, राइट। सो उस वजह से बहुत दिक्कत होती है, फिर आप बोलते हो कि ये काम का नहीं है कुछ, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज व्हाट यू वांट, दैट्स द फर्स्ट लेसन। Second thing, if we consider, then second thing is asking the right question is as important as answering them. Why I am saying this? हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 150 प्लस, और मेरे हम सबके पास एक ही चैट जीपीटी मॉडल है, राइट। चैट जीपीटी 5 ऑल ऑफ अस है, दूसरी को मे बी चैट जीपीटी 4 हो, और मे बी जेमिनी, राइट। सो दिस मॉडल इज सेम. So the differentiating factor will be nothing but what we are going to ask model and how we are going to ask the model. So asking the right question is as important as answering them, because if your question, so here read questions as nothing but prompt. If your prompt is correct, then your output will be absolutely correct, and it will be of very rich in nature with respect to content as well as structure, and with respect to insights, everything. So the important thing is to come up with the right question. That is the most absolute important thing. Okay, fine. And the last important, right, and this is often neglected, that quality of your life determined by the quality of your questions and whom you ask them to. So let's say suddenly मुझे कुछ issue हो जाता है, right? अभी let's say मैं talk दे रहा हूँ, सब सही चल रहा है, पर अचानक से let's say मुझे हार्ट में कुछ issue हो गया, तो मैं सीधा डॉक्टर प्रीति के पास आता हूँ, मैम देखो ये हार्ट में दिक्कत है, कुछ कर दो मेरा। तो मैम बोलेगी क्या चल रहा है, मतलब तुम तो गलत इंसान से पूछ रहे हो, मैं आई एम डॉक्टर बट आई एम डॉक्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट, आई एम डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, बट आई कैन नॉट गाइड विद रिस्पेक्ट टू हार्ट प्रॉब्लम्स, राइट। सो the idea is you should ask the question to the corresponding expert. अगर हार्ट में कुछ इश्यू है, then I must visit cardiologist, right? I should not talk to someone else, right? So similarly for each of your query, right, you may have different options, right, whom to ask, but ideally you should go for the expert, given a chance. Let's say कोई कंपनी में आपका let's say सिलेक्शन हो गया है, right, आपका या आपके स्टूडेंट का, तो किससे बात करना सही रहेगा कि कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं? आप कंपनी के प्यून से पूछोगे, चपरासी से पूछोगे कि भाई क्या लग रहा है ये कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं, या कंपनी में जो काम कर रहा है, कंपनी का जो सीईओ है, उनसे पूछोगे? Of course, that CEO or maybe the person who is working there, right, who he or she will be able to guide you tremendously as compared to the peon, right? So the appropriate person will have immense knowledge in that particular field, and then he or she will be able to guide you correctly as compared to others. So let me demonstrate this to you first, and then I will showcase you other aspects. So सिर्फ इतना करने से ही आपके जो आउटपुट है उसमें 80 to 90% जितना फर्क आ जाएगा. So let me try to showcase one interaction with ChatGPT. पहला इंटरेक्शन अगर आप देखोगे, पहला जो मेरा मैसेज है और पहला अगर मैं मेरा जो प्रॉम्प्ट बोलूं, तो उसमें मैंने बस बिल्कुल गूगल की तरह लिखा हुआ है कि माय ब्लड प्रेशर इज दिस, सजेस्ट मी समथिंग. ओके, अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो वैसा नहीं बोलता, वो रिस्पॉन्स गलत है. लेट मी ट्राई टू मिनिमाइज दिस सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपर्ली. सो इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, देन इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट. कुछ वो बता रहा है क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या करो, कुछ 4 सजेशन.
रफली उसने 5 सजेशन दिए और वहां पे खत्म कर दिया। अब सेकंड में देखो मुझे क्या पूछना चाहिए था कि इट्स ओके, मतलब मुझे मेरा ये सिचुएशन और मुझे कुछ रिजोल्यूशन चाहिए, बट हु इज द करेक्ट पर्सन टू आस्क दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? ऑफ कोर्स कार्डियोलॉजिस्ट, एंड इन द एरा ऑफ एआई वी हैव एवरीवन अवेलेबल विद अस। कार्डियोलॉजिस्ट भी है अपने पास डेंटिस्ट भी है अपने पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है, राइट? कोई भी ले लो, राइट? एआई कैन टेक एनी ऑफ द पर्सनालिटीज फ्रॉम द पास्ट एज वेल एज सम हाइपोथेटिकल पर्सनालिटी जो आपने बनाई हुई है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर पावर। सो आइडियली अब क्या होना चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन किसको पूछना चाहिए? सिचुएशन देने से पहले मुझे बताना चाहिए कि भाई तू कौन बनेगा, राइट? मेरे लिए तुम कौन हो? सो आई हैव मेंशनड इट ओवर हियर, एज यू कैन सी। मैंने क्या मॉडिफाई किया, इफ यू कैन सी, assume a role of cardiologist having experience of 25 plus years। so एक बार रोल दे दिया, एंड देन इफ आई आस्क द क्वेरी, तो वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा कि कार्डियोलॉजिस्ट की सारी बुक्स उसने पढ़ ली, एज्यूम करो। ये ऐसा लिखने से क्या हो गया कि उसका फोकस चला गया कि कार्डियोलॉजिस्ट के रिलेटेड जितना भी वेब मटेरियल है उसमें पूरा फोकस चला गया इसका, और पूरा उसने पढ़ लिया, वो एक्सपर्ट बन गया एक्चुअल में। और फिर मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो अब आप देखोगे तो रिस्पॉन्स में कितना फर्क है। पहले का रिस्पॉन्स सेम ही मॉडल है, 4O यूज किया हुआ है पहले भी, अभी भी 4O ही है, और अब ये रिस्पॉन्स देखो, बाकी का तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया आगे मैंने। तो ये देखो पहले डेली रूटीन में क्या हो, उसके ही 3 पॉइंट उसने तो दे दिया। स्टेप 2 डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, वो भी उसने बोल दिया, डैश डाइट फॉलो करो, उसके भी 3 स्टेप्स और दे दिए। फिर एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज की भी डिटेल दे रहा है कि ये सब करो तो चेंज होगा, राइट? और स्लीप मैनेजमेंट भी बता दिया, और उसके भी अंदर सब पॉइंट्स दे रहा है, और एंड में वो समराइज करके भी दे रहा है कि भाई ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान रखो, राइट? सो इन एनी गिवन डे ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर रिस्पॉन्स 2, but unfortunately we don't give this kind of context। so पहला रूल तो ये याद रखो कि like I mentioned that ChatGPT is trained on millions of data points, right? और millions of articles। so अब कौन से आर्टिकल्स पे फोकस करवाना है वो हमें पहले उसको बोलना पड़ेगा कि तू ये रोल एज्यूम कर ले, एंड देन गाइड। So अगर हमें आप लेट्स से आप पढ़ा रहे हो अलग अलग डोमेन से, यहाँ पे सब हो, maybe you can just mention your domain in the chat box, right? Couple of you if you can mention, then I can create some example aligned with that also। But the idea is, let's say you are teaching mathematics, so आपको corresponding वो बताना पड़ेगा कि assume a role of mathematician like Ildosh having immense knowledge of all the foundational mathematical theories and theorems, and फिर जो आपकी क्वेरी है वो पूछो, तो आप देखोगे कि तुरंत आउटपुट में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ये तो हम शुरुआत करते हैं, दिस इज जस्ट फर्स्ट रूल, we'll soon see the entire framework, so then you will be able to appreciate this even more। बट एटलीस्ट ये याद रखो कि कोई भी प्रॉम्प्ट, कुछ भी रिक्वेस्ट लिखने से पहले बताओ कि तुम कौन। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज इफ आई draw this very quickly, just give me a minute, let me just go over here, and if I draw this, then what I'm trying to demonstrate over here is, imagine जो भी आपका सिटी है, बड़ा सा कोई सिटी ले लेते हैं, लेट्स से मुंबई। सो मुंबई एक लाइब्रेरी एज्यूम करो कि पूरी मुंबई एक लाइब्रेरी है, और अब अगर आप कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे हो तो क्या हो रहा है कि आप लाइब्रेरियन से क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो लाइब्रेरियन के पास ये लाइब्रेरी जो है उसका नॉलेज तो है, उसने इधर उधर की बुक्स पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरियन जो बताएगा वो गलत होगा। बट इमेजिन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन पर्टिकुलर सब डोमेन, ये है एक डोमेन, let's call this particular domain, let's say you are interested in let's say physics, okay? आपको सिर्फ इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तो यहाँ पे हर एक सब सेक्शन में एक बंदा बैठा हुआ है, राइट? उसका काम पूरा क्या है, एक पर्सन बैठा हुआ है, उसका काम पूरा क्या है कि पूरे टाइम बस फिजिक्स की बुक ही पढ़ो, और ये फिजिक्स में एक्सपर्ट हो गया। ऐसा हर एक सब सेक्शन के लिए, राइट? एक पर्सन है आपके पास जो डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहा है, और एक सेक्शन भी है जो हो सकता है थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए हो, सो आप उसको भी पूछ सकते हो। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप लाइब्रेरियन को क्वेश्चन पूछना सही समझते हो, या जो एक्सपर्ट्स ऐसे बैठे हुए हैं सेक्शन वाइज उनको प्रेफर करते हो। ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट है उनको ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट का पूरा काम वही है कि वो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो बुक्स है उसको पूरा टाइम पढ़ के उसको समझ ले और उसके ऊपर से एडवाइस दे। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू लाइब्रेरियन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक, you must go to the corresponding expert of your domain। so that's the first thing। so now if I say, let's say on x-axis I have a different topics, let's say topic 1, topic 2, topic 3, up to let's say topic like infinitely many topics are possible। so let's stop at let's say topic n, and I am interested in topic x। अब topic x let's continue with the physics example। तो physics के केस में आप
स्टैंडर्ड 8 के बच्चे को भी पूछ सकते हो फिजिक्स के बारे में। ऑन वाई एक्सिस इफ आई डिनोट क्वालिटी, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड 8 के लेवल की हो सकती है, स्टैंडर्ड 10th की भी हो सकती है, स्टैंडर्ड 12th की भी हो सकती है, नोबेल प्राइज विनर की भी हो सकती है, राइट। सो रिसर्चर की भी हो सकती है। तो आप किसको प्रेफर कर रहे हो? ये ऊपर वाले जो डेटा पॉइंट्स है अगर उनको रेफर करोगे तो क्वालिटी आपकी ज्यादा अच्छी होगी, बिकॉज दे पोजेस हाई लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पहला प्रॉम्प्ट, कोई भी आपका प्रॉम्प्ट आप लिखो, उससे पहले द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी जस्ट असाइन द रिलेवेंट कैरेक्टर, ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि क्या कौन से डोमेन पे, कौन से सब डोमेन पे उसको फोकस करना है और रिलेवेंट काइंड ऑफ आपको आउटकम मिलेगा, राइट। सो ये पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर फ्रेमवर्क, राइट, ये ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि खराब होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा तो क्या होगा। नाउ बिफोर दैट what I would like to do is, if I just say this, let's say f of x is equal to, let's say, 3x plus 5, right? So just like any mathematical function, your output is mainly dependent upon your input. So अगर आपका input change होगा तो of course your output will change, and instead of f you can imagine we are talking about ChatGPT. So therefore prompting matters, because जो भी आपका output आएगा वो depend करेगा कि आपका prompt क्या है. So if you modify your prompt, then your output will change, right? So that's all matter, right? So therefore prompting is the most important aspect of any interaction with LLM for sure, right? So if you have any questions, you can kind of ask me in between also, and let me continue with the framework. So hopefully my second screen is visible now, right here. I can verify. Okay, fine. So now, like I mentioned, if your prompt is not proper, then the result will be generic, unstructured, and incomplete, right? और फिर आप, so overall objective हमारा क्या है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, right? With this LLMs, अगर वो हम कर पाए तो क्या होगा कि हम फ्री हो जाएंगे, और बाकी जो चीजें हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है, राइट, टीचिंग लर्निंग, उसमें जो रिसर्च जो है उसमें हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे इफ वी गिव जो रिपीटेटिव टीडियस टास्क है वो अगर हमने एआई को दे दिए तो, राइट। सो दैट्स द होल आइडिया, right? So we would like to accomplish more in less time. That's the objective, and I will try to demonstrate how we can increase our productivity by at least 5-fold by the end of this 4 sessions for sure. Okay, fine. So now अगर हम अच्छा लिखेंगे prompt तो क्या होगा? Response detailed होंगे, insightful होंगे, right, and progressive होंगे. That is for sure. Okay. So now let me focus on this particular framework. There are many frameworks, right? आप check करोगे, right? लोग बात करते रहते हैं बहुत सारे parts करके भी एक framework है, right? दूसरे भी बहुत सारे framework है. But personally, I like this particular framework, Create, because teachers के लिए भी ये word बहुत important है, right? Usually we create knowledge, right? And creativity is one of the important aspect of teaching learning, one can say. So it's very easy to remember. So let me explain you this properly, all the 5 segments of this framework, and then I will demonstrate. एक prompt लेके मैं बताऊंगा कि कैसे हमें ये सारे जो भी सब यूनिट्स है ये फ्रेमवर्क के वो अप्लाई करने होंगे, कोई टास्क अगर प्रैक्टिकली करवाना है तो, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट दिस फॉर श्योर, एंड यू कैन सी द रेफरेंस कहाँ किन्होंने ये मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क और नॉट, बट ही हैज सर्टेनली मेंशन्ड अबाउट दिस। ओके फाइन। सो नाउ व्हाट्स द आइडिया? सी तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर हमें मेंशन करना चाहिए बिफोर थिंकिंग अबाउट रिक्वेस्ट फॉर श्योर। दिस इज ऑब्वियस दैट पहले अपना कैरेक्टर बताओ कि आप क्या हो, राइट? वी हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी वर्चुअल आल्सो, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बोलो कि इस फील्ड का कोई सबसे फेमस पर्सन है उसका नाम लिखो। मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट कैन हैपन दैट इन योर फील्ड देयर इज नो एक्सपर्ट, देन यू कैन जस्ट मेंशन that maybe if you are talking about intersection of couple of fields, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा आपको, then you can just say you have this characteristics। तो characteristics भी मेंशन कर सकते हो कि आपके पास let's say 20+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको EI का पूरा नॉलेज है, आप but along with that you also have knowledge of let's say chemistry, और फिर मुझे ये पढ़ाना है मेरे स्टूडेंट्स को, तो क्या आप गाइडेंस देते हो, राइट? समथिंग लाइक दैट। सो कैरेक्टर में ये ध्यान रखो, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू विल जस्ट लाइक पर्सन, यू कैन आल्सो गिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रिक्वेस्ट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू
can give example of Apple के जो मार्केटिंग ईमेल्स है बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट, उनका टोन बहुत अच्छा होता है, राइट, वाइब्रेंट टोन होता है, इनोवेटिव जो भी उसकी फीचर्स होते हैं वो अच्छे से हाईलाइट करते हैं ताकि लोग रिलेट कर पाए वो प्रोडक्ट के साथ, राइट. और इफ आई एम राइटिंग वन पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल देन आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ सम फेमस न्यूज़पेपर्स. अब मैं बोल सकता हूँ कि इनकी स्टाइल फॉलो कर लो, राइटिंग स्टाइल. So then not only you will get rich output in terms of what do you say, words or maybe content, but also in terms of tone, क्योंकि tone भी आपका वो particular अलग होना जरूरी है, right? Many of the times people say कि ये tone, इसमें मेरा tone नहीं आ रहा है, AI generated ऐसा हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? Because you are not giving enough examples. Let's say आप मेल के लिए यूज कर रहे हो, मेल लिखने के लिए यूज कर रहे हो, you can give examples of your past emails. पहले तो ईमेल आपने AI से पहले खुद ही लिखे हुए, तब बोलो देखो ये टोन फॉलो करो जब भी आप आंसर दो, and then you will be able to see the impact instantly, right? So examples are also crucial part जो हम बहुत बार fail कर देते हैं. I will take concrete example, then you will be able to appreciate this even more, but this is one part. Adjustments are also important. Adjustments का मतलब क्या है कि कुछ चीजें हम AI पे छोड़ देते हैं और वो ऐसे ही छोड़ दी तो AI कुछ एज्यूम कर देगा और उससे हमारा आंसर वो नहीं होगा जो हमें चाहिए. तो मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स में कि ये आप ध्यान में रखो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस एडजस्टमेंट्स आर स्पेसिफिक टू रीजन. लेट्स से मैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स के लिए जनरेट कर रहा हूँ कुछ चीजें, एंड माय स्टूडेंट्स आर लेट्स से कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. सो वो जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, ऑक्सफोर्ड लेवल का यूके का कुछ जनरेट करके देगा तो मेरे कुछ काम का नहीं होगा. सो एडजस्टमेंट्स आर what changes I would like to make so that my content becomes aligned with my students. So that is what adjustments. And type of output में जैसे मैंने बोला आपको कैप्शन चाहिए तो बोलो कैप्शन चाहिए, आपको अगर एक पैराग्राफ चाहिए तो एक पैराग्राफ लिखो, राइट. जो भी चाहिए आप लिखो पहले से, टेबल में चाहिए, राइट, और यू वांट कंप्लीट रिपोर्ट या कोड चाहिए, ये नहीं लिखोगे तो फिर आप स्ट्रगल करोगे. लेट्स से आपने पूरा पूछ लिया कि ये मुझे चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसने सूडो कोड दे दिया जबकि आपको तो चाहिए था पाइथन कोड. तो एक्सप्लिसिटली लिख दो कि मुझे मेरा जो फाइनल आंसर है वो मुझे इसमें चाहिए, एंड देयर आर सम एक्स्ट्रास. सो दिस इज इनफ अबाउट फ्रेमवर्क. लेट मी showcase you how it works practically. तो एक हम example देंगे जिससे you will be able to appreciate it. So first I will take a simple example of summarization, and then I will take example of what do you say, some other things of course. Okay. So पहला जो example दे रहा हूँ, I can also modify appreciate this even more. So what I'm going to do, let me just copy this prompt and let me paste it over here. Okay. But इसमें मैं कुछ modify करूँगा just to showcase you how we use it properly, and let me go to some basic model there ताकि आपको पता चले even this will work in basic model, not just you need advanced models in this particular case, right? So okay, ये अभी मैं हटा देता हूँ, इस पे भी जाएंगे बाद में. But what is my task? My task is I want summarization of some content. Okay. Okay. So and then I am going to give some content. The content is so objective. पहले मैं बता देता हूँ. What is my objective? My objective is to create nice summary. Highlighting the most important concepts, right? As you can see, I want to give I want you to give me, so this is my request part, right? Okay. My output part is this: deliver this as a list of no more than 5 bullet points and 1 sentence summary. This is what I want in my output. But before that, the most important part was character. So character यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि you are a highly experienced writer who writes concise and readable. Concise क्यों बोला? Because I want summary. Summary चाहिए तो छोटा करना पड़ेगा. And readable भी होना चाहिए. ऐसा नहीं छोटा कर दिया, चाइनीज में लिख दिया, हम नहीं पढ़ पाएंगे, right? So readable होना चाहिए properly and without stop words, filler words और jargon, right? So ये मैंने setup बोल दिया कि आप कौन हो. फिर ये मैंने टास्क बोल दिया, this is my request, ये मुझे करना है, right? फिर मैंने क्या बोल दिया, मुझे कैसे ये चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फॉर्मेट आई वांट दिस. इसमें मैं एग्जांपल का या एडजस्टमेंट्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी इतना रखते हैं. और कंटेंट के लिए मैं चला जाता हूँ विकिपीडिया पेज पे. लेट्स से विकिपीडिया वी आर स्टार्टिंग विद लेट्स से सचिन तेंदुलकर इनका विकिपीडिया पेज है. वहां से बहुत सारा कंटेंट उठाते हैं और देखते हैं कि ये कितना अच्छा समराइजेशन करके देता है. लेट्स सी. ओके. सो
I am giving example of this as a generic example, Sachin Tendulkar, but you can imagine कि इसके use case क्या क्या हो सकते हैं. Let's say आपने 3 या 4 क्लास पढ़ा दिए और फिर क्या करना है, वो पूरे यूनिट आपके 2 या 3 खत्म हो गए और उसकी समरी आपको स्टूडेंट्स को देनी है. Let's say in 4 or 5 one can say paragraphs or something, right? So जिसमें पूरा कवर हो जाए मॉड्यूल. Okay, so let's say ये इतना सारा मैं उठा लेता हूँ, जितना मतलब वैसे तो बहुत हम ले सकते हैं, let's say इतना ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, and I will just copy paste this, right? It's a lot of content as you can see, right? ये पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है. अब मैं सिर्फ एंटर कर देता हूँ, let's see, okay. So you can see lot of content is there. ये ऐसे मुझे बहुत स्टोर करना पड़ेगा तब जाके ये पूरा खत्म होगा, right? But let's see what it gives as output, right? ये अभी कंटेंट ही चल रहा है हमारा, इतना सबका मुझे समराइजेशन चाहिए था, right? तो मैंने ये पूरा दे दिया उसको, and you can see first thing you notice is कि इसने बुलेट पॉइंट्स कितने लगाए, ठीक है, एग्जैक्टली 5 बुलेट पॉइंट में पूरा समरी कर दिया, 1 2 3 4 5, और एक सेंटेंस की समरी दे दी. अगर किसी को एक सेंटेंस में बताना है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो ये दिस सेंटेंस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस टू समराइज इट. Right? You can imagine what all applications are possible with this kind of prompts. Okay? और ये not only this, इसका अगर आप देखोगे एक बार इसको पढ़ोगे तो then you will be able to appreciate कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें सचिन तेंदुलकर के बारे में जो जाननी चाहिए वो उसने समराइज करके हमें दे दी. As you can see, most international runs, one of the most important achievement, most मैचेस प्लेड, ये भी बड़ी अचीवमेंट है. नंबर ऑफ सेंचुरीज, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, राइट. सो बोर्ड में वो बल्कि बता भी रहा है कि कौन से सबसे ज्यादा अचीवमेंट है, राइट. सबसे पहला पर्सन टू स्कोर ओडीआई डबल सेंचुरी, राइट. फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 200, राइट. एंड भारत रत्न, ये भी वो भी रिकॉग्निशन बता रहा है आउटसाइड क्रिकेट, मतलब इंडिया लेवल पे क्या रिकॉग्निशन मिला हुआ है, राइट. सो एज यू कैन सी, और डोमेस्टिक कैरियर के बारे में बता रहा है कि क्या किया हुआ है उन्होंने, राइट. एंड कुछ सेटबैक्स भी बताया कि कब उन्होंने मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाया रिलेटिवली, राइट. और कैरियर का लेंथ भी बता दिया, 24 ईयर. और इफ यू रीड देन एज यू कैन सी ये क्या क्या उनके अचीवमेंट्स है, राइट. सो एंड अभी तो मैंने पूरा कंटेंट भी नहीं दिया था. इमेजिन व्हाट विल, अगर मैंने पूरा दिया होता तो और भी ज्यादा अच्छा ये हमें बता पाते. नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट वन मोर रिलेवेंट एग्जांपल. किस हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी होती है, पढ़नी होती है, बुक्स पढ़नी होती है. सो हाउ वी कैन यूटिलाइज पावर ऑफ kind of, and maybe I can give this prompt to you also, so that you can try it with your favorite book or whatever you would prefer. So what I'm going to do, I will just paste this prompt over here. यहाँ पे मैंने भेज दिया है, right? You can copy paste this and देख सकते हो कैसा अच्छा आउटपुट आ रहा है इसमें. बट ये पर्टिकुलर क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट एंड मॉडिफाई इट. कि ये मैंने क्या किया हुआ है, अगेन जो पहला सेंटेंस है वो तो वही रखा क्योंकि टास्क मेरा वही है. पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बुक का जो एसेंस है उसमें जो अच्छी बात है वो मुझे पता लगा देनी है, ताकि मैं उसको अप्लाई कर पाऊँ और अच्छा बेहतर इंसान बन पाऊँ या इंप्रूव कर पाऊँ कुछ, या मेरा जस्ट नॉलेज बदले. लेट्स से मुझे जस्ट बुक के बारे में जानना है. सो मैंने क्या कर दिया, पहला सेंटेंस जस्ट लाइक वो सचिन तेंदुलकर वाले केस में था वही है, उनके जैसा ही हमने रखा हुआ है. हाईली एक्सपीरियंस राइटर वो राइट्स कॉन्साइज एंड रीडेबल टेक्स्ट विदाउट स्टॉप वर्ड्स, फिलर वर्ड्स एंड और जार्गन. आई वांट यू टू गिव मी समरी. अब मैंने बुक का नाम लिख दिया कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स, काफी फेमस बुक है, इसके ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में मूवीज बनी हुई है. तो उनके ऑथर का नाम लिख दिया जॉन ग्रीन. Highlighting the most important concept, deliver this as a list of no more than 5 bullet points and follow it with one sentence summary. तो वो पूरा बता देगा कि बुक में कैसे स्टार्ट हुआ, क्या स्टोरी है बुक की. एक सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या बुक बता रही. तो ये ज्यादा इफेक्टिव तब होगा अगर मैं इसको अप्लाई करूँ कोई ऐसी बुक्स के लिए कि जिसमें कुछ हैबिट्स के बारे में बताया हुआ है. सो मे बी आई कैन गो विथ हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. बहुत ही फेमस बुक है ये. सो आई कैन जस्ट से हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड influence people. I can just go with this, I guess. वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है. एंड ऑथर का नाम भी पहले आधा अधूरा ही रखते हैं, देखते हैं वो कितना इंटेलिजेंटली पकड़ पाता है. लेट्स सी. तो इवन दो आई डोंट नो द फुल नेम, एज्यूमिंग उसने सही से पकड़ लिया कि डेल कार्नेगी के बारे में बात कर रहा हूँ और ये एक्शनेबल पॉइंट्स दे रहा है.
देखो, शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, तो ये पूरी टिप्स दे दी कि बुक्स के बेसिस पे कि क्या करना चाहिए आपको अगर आपको फ्रेंड्स बनाना है। अवॉइड क्रिटिसिज्म, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, राइट, लेट अदर्स फील द आइडिया इज देयर। सो इसको अगर मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ, मुझे अभी ये 5 पॉइंट्स कम लग रहे हैं ये पढ़ने के बाद, देन आई कैन से गिव मी 15 एक्शनेबल पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 5, ताकि क्या फायदा होगा कि मुझे ज्यादा डिटेल में मुझे इंटरेस्ट आ गया कि लेट्स से ये तो बहुत अच्छी बुक लग रही है, तो ये अब क्या करेगा पूरे बुक के बेसिस पे। देखो अब छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें जो बुक में मेंशन की हुई है, स्माइल, राइट, उसका भी इम्पैक्ट होता है, शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, राइट, वो भी यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे बोला हुआ है, राइट, बी ए गुड लिसनर, राइट, तो वो ये डिटेल में जा रहा है। सो अब लेट्स से इसके भी बियॉन्ड जाना है मुझे, आई विल से पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 points and explain in one para each one of them. So समझ में आ रहा है? अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो, बट यूजुअली हम क्या करते हैं कि पहली बार में जो आया वो पकड़ लिया और फिर खत्म कर दिया। बट चैट का मतलब ही यही है कि बेसिकली इट्स इंटरेक्शन, राइट, तो ये बैक एंड फोर्थ ऐसे चलना चाहिए। तो इटरेशन से क्या होगा, रिफाइनमेंट आएगा, और जब आप कंक्लूड करो तब आपके पास वो होना चाहिए कि जो आपको चाहिए एक्चुअल में। एंड हमारा पर्पस ही यही है कि क्रिएट फ्रेमवर्क का आइडिया क्या है कि हमें जो चाहिए वो जल्दी से मिले, हमें ऐसा टाइम नहीं लगना चाहिए कि भाई 2-4 बार उसको पूछा फिर जाके कुछ काम का मिला, ऐसा नहीं, हमें एक बार में ही आंसर मिल जाना चाहिए जो हमें चाहिए। सो वो पर्पस है। ओके, सो एज यू कैन सी इसने 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए और अब वो 3 पॉइंट्स को डिटेल में बता रहा है कि बुक के अकॉर्डिंग वो 3 पॉइंट्स क्या है, right? So hopefully you can see, imagine a lot of applications of this work, right? Even you can summarize your inbox, right? आपके inbox को अपने निकाल के, right? अब तो और एडवांस चीजें भी आ गई, उस पे बाद में जाते हैं, बट लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप कि और क्या इसमें है। सो क्रिएट फ्रेमवर्क में इसमें हमने देखा आइडिया ऑफ सी, कैरेक्टर, हमने ये भी देखा क्या रिक्वेस्ट हमें पुट करनी है, राइट, कैसे रिक्वेस्ट देनी है, दैट इज ऑब्वियस, वो पहले ही पता था, बट टाइप ऑफ आउटपुट इज इंपॉर्टेंट, इस पे हमने फोकस किया इन समराइजेशन में आपने देखा तो मैंने बताया था कि 5 ही बुलेट पॉइंट्स है तो उसने 5 दिए, अगर उसने उसको बोला 15 पॉइंट्स दो तो वो 15 दे रहा है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जो चाहिए वो पहले से दिखो, आपको लेटेक्स कोड जनरेट करवाना है तो उसको बोलो लेटेक्स कोड चाहिए, राइट। सो ये नॉर्मल चीज है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू से व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल फ्रेमवर्क। सो अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रेसिपी क्रिएट करेंगे और इसमें क्रिएट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे पूरा। ओके, सो लेट्स से आप घर पे अकेले हो और आपको कुछ फ्रिज में जो भी पड़ा है अपने पास उससे कुछ एक नई डिश बनानी है, राइट। सो यू कैन आल्सो एक्सपेरिमेंट विद दिस, कि मतलब एआई का यूज करके कोई आप रेसिपी बनाओ एंड देन सी कि वो कितनी अच्छी बन रही है, राइट। एंड इट कैन बी अ गुड बिजनेस आइडिया आल्सो फॉर some interested people, but यहाँ पे मेरा पर्पस वो आइडिया के ऊपर नहीं है, मेरा पर्पस है कि क्रिएट फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है ये टाइप के टास्क के लिए, कि लेट्स से मुझे ऐसा कुछ जनरेट करना है कुछ क्रिएटिव वे में, लेट्स से I would like to come up with a new recipe, मुझे नई रेसिपी बना देती। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि अब मुझे बताना पड़ेगा भाई तू तो बहुत ही फेमस शेफ है इंडिया का, 20 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारा, और अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा हूँ। देखो आप, मैं यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है और कि मुझे इंडियन आप जो रीजनल इंडियन फ्लेवर है उसको आप ग्लोबल टेक्निक के साथ अच्छे से कंबाइन करके आगे बढ़ते हो। सो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो हैविंग सम नॉलेज ऑफ ग्लोबल टेक्निक्स, सिर्फ इंडियन तरीके से आप खाना नहीं बनाते हो, ग्लोबल टेक्निक्स भी आपके पास है। फिर मैंने क्या बोला कि पहले मुझे पूछो कि मेरे पास क्या है, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज वो कुछ ऐसा बोल देगा कि ये बना दो, वो चीज अपने पास होगी नहीं तो क्या करेंगे, राइट। सो दैट इज नॉट सेंसिबल, तो इसलिए मैंने वो किया। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देखो तो मैंने क्या कर दी है कि जो भी इंडिया के अच्छे शेफ्स है फेमस, राइट, इंक्लूडिंग संजीव कपूर, विकास खन्ना, तो उनका नाम दे दिया कि भाई इनसे इंस्पायर हो जाओ, इनके जैसा करो, राइट। एंड फिर ये हो गया मेरा एग्जाम्पल जो हमने पहले नहीं दिया था। अब उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट हो गया। ये मैंने क्या बोला कि एक तो भाई तुझे जो चाहिए वही बताना, जो चाहिए वही यूज करना, नहीं तो वो क्या करेगा, मैंने लिस्ट दे दिया 10 चीजें हैं तो 10 चीजों को मैंडेटरली मिला के कुछ बना देगा, तो वो तो खाने लायक या पीने लायक नहीं हो। सो आई हैव टू टेल इट एक्सप्लिसिटली कि मुझे जितना जरूरी है उतना ही यूज करना, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ओके, और एडजस्टमेंट मैंने क्या किया कि मैट्रिक मेजरमेंट फॉलो करो, मैं इंडिया माउस, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, डू नॉट सजेस्ट रेसिपी अंटिल आई प्रोवाइड द लिस्ट, वरना लिस्ट के बिना ही वो शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली टाइप ऑफ आउटपुट में मैंने क्या बोला, मुझे क्लियर टाइटल चाहिए, मुझे सिंगल पैराग्राफ चाहिए 100 वर्ड्स का, और कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट विद मेट्रिक क्वांटिटी,
और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मुझे इंस्ट्रक्शन दो जो इंग्लिश में होनी चाहिए और सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट हो गया। अब देखते हैं कि मैंने क्या दिया इसके बाद। इसने पूछा कि भाई क्या क्या है आपके पास किचन में, तो मैंने बोल दिया ये यूजुअली हमारे घर पे होती है वैसी चीजें मैंने बोली हुई है कि ये मेरे पास तकरीबन 10 चीजें हैं अभी अवेलेबल, अब बताओ इससे क्या बना सकते हैं, राइट। सो नाउ you will be able to appreciate the power of it. देखो इसने बड़े अच्छे से पहले तो नाम दे दिया कि भाई डिश का नाम क्या है, ओके, एंड ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या स्पेशल फीचर्स है इसके, और देखो आप आउटपुट में वो बता रहा है कि किससे इंस्पायर हुई है ये पर्टिकुलर रेसिपी, राइट। संजीव कुमार से क्या इंस्पिरेशन दिया, गगन आनंद से क्या इंस्पिरेशन दिया, विनीत भाटिया से क्या इंस्पिरेशन दिया, तो उन तीनों की जो भी मतलब काइंड ऑफ स्किल्स है उसको मिला के हमने एक नई रेसिपी बना दी है, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, वो इंग्रेडिएंट्स भी बता रहा है कि ये बासमती राइस इतने लो, ये पर्टिकुलर नेक्स्ट जो आपका जो भी है वो इतना लो, राइट, ग्राम्स में, राइट, जो हमने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप बाय स्टेप मेथड बोल रहा है कि पहले क्या करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, राइट। So you will be able to appreciate this कि ये कितना अच्छे फॉर्मेट में आ गया। और why I am showcasing this example, interactions की लेंथ देखो, सिर्फ 2 स्टेप में मुझे आंसर मिल गया, राइट। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन आप कोई अगर बता सको, कुछ डाउट आ रहा है तो, एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड। आप नहीं बताओगे तो फिर मैं ही कुछ क्वेश्चन जनरेट करके बताऊंगा, सेंसिबल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ श्योर। हम उसको कमांड दे सकते हैं कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू। Of course. That is a very good follow-up question. That what will be the calorie distribution, let's say, right? Along with nutrition values. Let's see. So I can skip this. I don't want a lot of thinking for this. I'm sorry, ये मॉडल मैंने थोड़ा गलत सिलेक्ट कर दिया, इस टास्क के लिए थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं थी, बट इट्स ओके, मतलब soon we'll get answer for this. Any other question? Meanwhile we'll check the Excuse me, sir. हाँ, so इसने बता दिया, देखो for बासमती राइस कैलोरी क्या होगा, प्रोटीन क्या होगा, so I can download this particular table and share with, right, whatever, right? So you can see, right? For every, so you can also द सेम टाइम वो अनेक भारतीय भाषा में प्रसारित हो सकता है क्या? इसके बारे में मैं आज और कल दोनों मिला के आपको आंसर दूंगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशन है, वो कुछ भाषाओं को सपोर्ट करता है, नोटबुक एलएम करके एक दूसरा टूल है, उसका कुछ अलग है। बट ऑफ कोर्स अगर मैं चाहूँ तो इसको लेट्स से गिव मी द एंटायर रेसिपी, लेट्स से इन मराठी, लेट्स से, ओके, so hopefully it will be able to give us, but अभी उसमें प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। जैसे मैंने अभी जैसे ऑब्जर्व किया है कि गूगल अपना जो जेमिनी है वो थोड़ा सा बेहतर है कुछ ट्रांसलेशन में, या एक एंट्रोपिक का क्लॉड करके भी प्लेटफॉर्म है, वो भी है। बट ऑफ कोर्स यू कैन पिक एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड वो आपको काइंड ऑफ कन्वर्ट करके देगा। Okay, thank you sir for your unconditional support. वेलकम। तो अब इसमें एक और क्वेरी आ सकती है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और अभी तक एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस गो ऑन। हाँ सर, इसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप भी ऐड कर सकते थे। हाँ श्योर, we can add age group for so you are talking about with respect to recipe or in general कि मतलब आप जो भी queries मतलब prompt generate करो। about the recipe only. Yes, of course. We can add that. I can just say add the age group. Sir, even For- I have a doubt.
About translation, sir, if you can tell us if some questionnaires needs to be translated in vernacular language like Marathi or Hindi, so which is the best tool? So for example, in PhD we want to cover not only English educated population but other than that population also. So which tool can we use so that we can translate it into vernacular language? राइट, सो लाइक आई मेंशन्ड कि ये थोड़ा सा क्या है कि मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मैं आपको क्या करूंगा कि आप 2 दिन तो हम साथ में ही, मतलब ये वाला सेशन भी है आज के और कल के, तो कल एंड में मैं आपको वो समराइज करके बताऊंगा कि किसका क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि वो उसके लिए मुझे बहुत सारे टूल्स बताने पड़ेंगे। सो एज एंड व्हेन इट कम्स आई विल शोकेस यू। जैसे अभी आप मुझे बता सकते हो कि ये देखो, एक तो हमने सिंपल इससे ही कर दिया चैट जीपीटी से। अब ये अच्छा है या बुरा, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो मराठी दैट मच, सो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट विद रिस्पेक्ट टू हिंदी इट्स डूइंग मोर और लेस गुड, मतलब मैं बोल सकता हूँ आई गेस अराउंड 90 to 95% उसका सही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड गूगल ट्रांसलेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें अगर आप डालोगे तो आंसर ज्यादा अच्छे होंगे, राइट? हाँ श्योर, पर उसमें मैं बाद में आऊंगा। अभी हम थोड़ा एलएलएम्स पे ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं, देन ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। यस श्योर सर, वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहे हैं वो क्या रिलायबल है? किस बेसिस पर? ट्रांसलेशन के बारे में पूछ रहे हो आप, या जो कंटेंट जनरेट हो रहा है उसका? कंटेंट, वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप दिया था कि कुछ देर पहले, वो रिलायबल था विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, विदाउट एनी, तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप दिया था ना? So again means whatever AI is generating, we have to kind of verify it. So अब ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा काफी। So sir has asked a very correct question कि आपने कैसे मान लिया कि ये सही है। So उसका एक मैं तरीका बताता हूँ। Now there can be multiple ways. So सबसे पहला तरीका और सबसे ऑथेंटिकेटेड तो कौन है कि भाई आप खुद ही डोमेन एक्सपर्ट हो। So most of the times आप जो क्वेरी पूछेंगे तो आपको खुद पता होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पे तो स्पेसिफिक वैल्यूज है, तो उस पर मैं बाद में जा रहा हूँ। बट यूजुअली क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई अपने कोर्स का क्वेश्चन पूछा, राइट? कोर्स का कोई क्वेश्चन जनरेट करवाया, तो क्वेश्चन जो जनरेट हुआ है वो सेंसिबल है कि नहीं, दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बट लेट्स से आई एम नॉट डोमेन एक्सपर्ट एंड आई स्टिल वुड लाइक टू वेरीफाई दिस कि भाई ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट एक एफिशिएंट तरीका मैं बताता हूँ कि जिसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। आई कैन गो फॉर other LLM which are good with respect to let's say verification task. So जैसे कोई fact based verification करना है, so what I can do first कि let's say इसको मैं टेबल में नहीं चाहिए, मुझे जो ये जो ब्रेकडाउन मिला है ना, न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन, उसको मैं पहले एक बुलेट फॉर्म में चाहिए मुझे, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए कॉपी करने के लिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट मॉडिफाई दिस, आई विल से न्यूट्रिशन वैल्यूज इन बुलेट लिस्ट। ये और कोई पर्पस नहीं है इसका, जस्ट मेरे फॉर द sake of simplification with respect to copy paste. And then what I recommend, there is one different tool which is called Perplexity, अगर आपने शायद नाम सुना हो। So what is the idea of Perplexity? Perplexity अलग तरीके से वर्क करता है। वो पहले जो वेब पेजेस है उसको सर्च करता है, उसमें ऑथेंटिकेटेड जो भी काइंड ऑफ मटेरियल है उसके बेसिस पे वो आगे एलएलएम को अप्लाई करके आंसर देगा। सो दैट मीन्स ये जो भी आउटपुट आएगा उसका, दैट विल बी बेस्ड ऑन सम सोर्सेस। तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर दे रहा है तो कहाँ से वो आंसर का बेस क्या है, मतलब कौन से बेसिस पे वो आंसर दे रहा है। तो उससे क्या आसानी होगी कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्सेस हमें मिल जाएंगे कि कौन ये आंसर को बैक कर रहा है। तो ये हर कोई केस में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने पोएम जनरेट की तो पोएम को मैं वहां पे डाल के नहीं पूछ सकता कि भाई ये सही है या गलत है, राइट? पोएम इज अ क्रिएटिव थिंग, और ऐसे इज अ क्रिएटिव थिंग। सिमिलरली दिस रेसिपी इज क्रिएटिव थिंग, बट लाइक सर हैज आस्क्ड कि व्हाट इज द गारंटी दैट व्हाट द न्यूट्रिशन वैल्यूज आर करेक्ट। सो व्हाट आई कैन डू, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यूज आ रही है उसको मैं कॉपी पेस्ट करके परप्लेक्सिटी करके एक टूल है उस पर डालूंगा और उसको पूछूंगा कि चेक करके दो भाई कि ये जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो सही है कि नहीं। तो वो चेक करके देगा, नॉट ओनली वो चेक करके देगा, वो ये भी बताएगा कि कौन से काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट के बेस और कौन से काइंड ऑफ वन कैन से रिसोर्सेज के बेसिस पे वो आंसर दे रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? I will just say again, ideally I should follow create framework। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं just simply बोलता हूँ कि I have created one new recipe। Okay. Please check
द आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ जो भी मेरे पास है, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज, ओके, एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट माय राइट, जो भी मेरे पास आया। सो अब ये क्या करेगा, एंड अगेन यहाँ पे भी कुछ हम फाइन ट्यून कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ वो यहाँ पे एक बटन आता है जिससे वो हम फोकस कर सकते हैं कि किस पे बेस होगा आपका जो आंसर आ रहा है। सो ये देखो अब वो पूरा करके दे रहा है। सो आई कैन, इसमें इसने कुछ मुझे सोर्स नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली, सो आई विल जस्ट से गिव मी द कॉरस्पॉन्डिंग सोर्सेस फॉर कैलकुलेशन ऑल्सो। तो ऐसा करके आप ज्यादा मतलब आपके जो भी रीजनिंग जो भी जनरेट हो रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट। सो ये देखो इसने दे दिया, ये इतने सारे 28 सोर्सेस दे दिए जिसके बेसिस पे वो, क्योंकि ये सारी खिचड़ीज है, ये जो खिचड़ी है उसमें जो मेंशन है, जैसे देखो तल्ला ददल दैट फेमस है, तो उन्होंने जो कैलोरीज मेंशन की होगी तो मोस्ट लाइकली वो सही हो। तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन कि जो वेब पे जो इंफॉर्मेशन है वो अगर सही है, स्पेशली जो ये सोर्सेस में मेंशन्ड है वो, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी सही है। बट व्हाट आई कैन काइंड ऑफ गारंटी यू इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90 to 95% ऑफ द थिंग्स विल बी करेक्ट फॉर श्योर, क्योंकि ये जो जनरेट करते हैं, मतलब ये पूरा जो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, वो भी इधर उधर के मतलब फालतू सोर्सेस नहीं लेते, जो रिलायबल सोर्सेस होते हैं यूजुअली उन पे ही वो ट्रेन किया होता है। सो वेब पे अगर जो मटेरियल है वो अगर टू द पॉइंट है या करेक्ट है, then it's very likely that this is also correct। जैसे अब ये बता रहा है कि ये जो पहला जो पहला जो रीजनिंग है राइस के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिशन टेबल, वो उसने ये सोर्स से लिया हुआ, दूसरी जो वैल्यू है उसने यहाँ से ली हुई है, तीसरी जो वैल्यू है उसने यहाँ से, उसका जस्टिफिकेशन यहाँ, राइट। सो इट विल गिव यू लाइन बाय लाइन जस्टिफिकेशन कि कहाँ से ये बोल रहा है कि ये वैल्यू ही इसके लिए सही है, राइट। सो यू कैन फर्दर वेरीफाई कि आपका जो आंसर है वो सही है, फाइन। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू, बट लाइक आई मेंशन्ड the ultimate test is you, right? So you have to be sure. Usually हम जो पूछते हैं हमें पता होता है, so इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but still if you are trying something new, so then of course you should double verify or triple verify कि भाई हम जो propose कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। So of course you can go to Perplexity. So the now era is changing, मतलब अब सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहा कि you are good with one AI tool. How you are going to integrate different AI tools, then you will be appreciated more, और अच्छा कर पाओगे। Anyways, so let's continue with this framework. एक कुछ और example देते हैं, then so that you can appreciate this even more. And इसमें कुछ हम changes भी देखेंगे अब कि क्या और changes हम कर सकते हैं। तो पहले मैं changes के बारे में बात करता हूँ, and then we will talk about other things. So for this, what I recommend, अब कोई chat box में लिख सकता है क्या उनका expertise domain क्या है, क्या कौन सी चीजों में आपका expertise है, some domains, maybe 2 or 3 domains, and then I will showcase you something. You can speak or maybe you can just type in the chat box. I will just copy paste from there. Let me check. Okay, Perplexity कल हो गया था तो good, but I'm just showcasing, I was just answering to the question. Okay, fine. So थोड़ा रिविजन हो जाए तो I hope the organizer won't mind, and don't worry अगर वो 5 मिनट उसमें चली तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, don't worry. Fine. So now let's say I'm picking up topics of Dr. Shruti. So what I would like to do is, let's say I would like to come up with some startup ideas. Okay. So now startup ideas के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? I will just say give me 5 startup ideas. Okay. Again, this is a bad way of prompting because ideally मुझे create framework follow करना चाहिए, but अभी मैं कुछ और चीज demonstrate करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, on the domains of my expertise. Okay, जो मेरी expertise में लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने expertise लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये demonstrate करूंगा कैसे आप एक ही prompt के infinitely many different versions create कर सकते हो just by tweaking one small parameter. Okay, so इसको मैं अभी enter दे देता हूँ, let's say, so कुछ startup ideas आ जाएंगे, right? So I'm not saying these startup ideas are bad,
राइट? मे बी डॉक्टर श्रुति कैन हेल्प मी कि सेंसिबल है कि नहीं, बट इट सीम्स सेंसिबल, मतलब ये किया जा सकता है, बट दिस आर वेरी ट्रेडिशनल इन सम सेंस, क्योंकि हर कोई ये कर रहा है, राइट? अर्बन पेस मैनेजमेंट, राइट, कंसल्टेंसी, ये हर कोई कर रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब, राइट? दिस आर फाइन, बट देयर इज नो न्यूनेस इन दिस, ओके? सो इसमें क्या किया जा सकता है? ओके, सो इट्स ओपन ओवर हियर. So I am talking about this creativity part. Okay, how to manage creativity of your tool? Okay, in this particular case, LLM, which is nothing but ChatGPT. So उसको change करने के लिए there is one parameter which is called nothing but temperature. तो उसको समझते हैं. What is temperature and how we can play with it? Okay. Okay, so what I'm going to do now, I will write the same prompt, okay, same रखते हैं, उसको पेस्ट करता हूँ, बट पीछे एक चीज ऐड कर देता हूँ, let's say temperature is equal to 2. So इससे क्या हो जाएगा? Temperature is a parameter जो creativity level measure kind of maintain करता है आपके जो भी response है उसका, right? So अब मैंने क्या कर दिया कि temperature की value जो है उसको मैंने बढ़ा के 2 कर दी, okay? अब response देखो तो क्या आ रहा है, okay? So this is like creativity. आप देखोगे अब रिस्पॉन्स आपके बोल्ड और क्रिएटिव हो गए, राइट? सो अब इसको पढ़ोगे as compared to previous response, then you will be able to see the difference. ये वाले ज्यादा innovative है for sure, right? Bug to beauty, right? So right, नाम से ही काफी अच्छा लग रहा है, right? Cosmetics से related है, of course, right? Products like anti-aging serums, right, and so on and so forth. Biodegradable face masks. Virtual insect zoo and AR education, right? So this is something one can say gamification is also coming up, right? And along with that, it's also giving us some ideas with respect to, of course, if I like this particular idea, then I can ask further. इसका पूरा startup का plan दे दो मुझे, तो then it will give me a plan for it, right? But the important part is, right? So let me give you one more simple example, so then you will be able to appreciate this even more. एक simple prompt start करता हूँ मैं. This time I am going to start with let's say time management tips. Okay, give me 5 or maybe let's say 10 time management tips. And temperature is equal to, let's say initially I am starting with 1. Okay, तो कोई tips मिलेगी, बट ये कुछ ठीक ठाक ही होगी, मतलब ये सारे टिप्स 2 मिनट रूल कुछ इनोवेटिव है कि जो पहले नहीं सुनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके. मींस रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट डेली के विद टाइम स्पेंड करो, देखो क्या गलत किया, कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे. ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही फेमस है, इसके एप्स भी मिलते हैं, राइट? इंस्टॉल कर सकते हैं हम. सो दिस इज फाइन, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे क्रिएटिव आंसर चाहिए, ये नहीं पसंद. तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेम थिंग आई विल रीराइट, but this time I'm giving temperature is equal to 2. So now you will be able to see more creative tips. Theme your days. हर एक दिन का एक थीम हो गया कि मंडे का मेरा काम ये रहेगा, मंडे का थीम ये है, डीप वर्क ऑन मंडे, लाइक रिसर्च पे फोकस करूंगा मंडे को, ट्यूसडे को सिर्फ एडमिन काम करूँ, वेडनेसडे को नेटवर्किंग पे फोकस करूँ, राइट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. गेमिफाई योर टू डू लिस्ट, राइट? कुछ अच्छा कर लिया 3-4 घंटे, तो खुद को कुछ गिफ्ट कर दो, पिज्जा गिफ्ट कर दो, व्हाटएवर, राइट? Then energy mapping, right? Instead of clock time, जब ज्यादा energetic feel कर रहे हो तब right? ऐसे ही कुछ कहना चाह रहा होगा, right? Track your right? वो energy के according आप plan करो अपना schedule, right? It's good, right? Micro deadlines with public accountability. पहले से announce कर दो भाई आपके बॉस को या सुपीरियर को, तो भाई देखो आपका ये वाला जो काम आपने दिया था ना, मैं 2 बजे तक कर ही दूंगा, अब उनको बोला है तो करना ही पड़ेगा, right? Like that. So you can see reverse calendar planning, right? ये तो बहुत ही अलग है, मतलब so start from your deadline schedule backwards to today, right? Parking lot notebook, right? So ये बहुत ही अलग-अलग तरीके बता रहा है टाइम मैनेज करने के. And you can see this difference just by change in this particular parameter. यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया. अब मैं इसको 1.5 करूंगा तो क्या होगा? So you can imagine what is happening. 1 है तो ज्यादा मतलब ट्रेडिशनल टाइप के मिल रहा है हमें. 1.5 है तो समथिंग इन बिटवीन, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा रियलिस्टिक, वैसा कुछ मिलेगा. 2 होगा तो एकदम क्रिएटिव हो जाएगा, राइट? सो दैट्स द आइडिया, राइट? So you can see for one kind of prompt you can have different. So ये कुछ नया इसमें उसने जोड़ दिया, cluster meetings into one block, right? Create transition rituals, right? So on and so forth. बीच में थोड़ा stretch कर दो, थोड़ा breathing exercise कर दो, ताकि और
आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ओवर हियर इज विद टेम्परेचर. नाउ आई लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि आपको पोएम बनानी एक नहीं, या आपको लेट्स से दशम 3 की मूवी स्क्रिप्ट बनानी है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे आप? व्हाट डू यू थिंक? Sir, how many temperature levels are there? Okay, let me summarize it, right? So whatever I have discussed, you can see the summary over here. So if you want something very technical, let's say based on absolute facts, then you can go for absolutely low value of temperature, which is close to 0 or 0.3. So by default, if you don't write anything, then वो absolute temperature ही ले रहा है, मतलब वो 0 के पास लेगा, right? But once you want some creative responses, आपको temperature की value high रखनी होगी. Now can you answer my question? क्या होगा? So its range is like this between 0 to 2, and जो भी real number आप pick करना चाहो कर सकते हो with respect to these two numbers. Right? What do you think? For writing poems and let's say coming up with new Bollywood movie scripts, or even for recipe generation. और क्रिएटिव राइटिंग क्या होना चाहिए आपका टेम्परेचर की वैल्यू? चेक चैट्स. 2 sir. Right, it must be towards higher side, right? 2, right? So it's this is how you can manage your creativity, right? ये जरूरी नहीं है कि अब ये भी क्वेश्चन, जैसे हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो हम एआई का यूज कर रहे हैं, और दूसरा ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक जैसा लगे, कि जैसा आपका कलीग यूज कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हो, क्या डिफरेंशिएटिंग होगा? एक ही टाइप का लिंक्डइन पे पोस्ट जा रहा है, एक ही टाइप का ईमेल जा रहा है, एक ही टाइप का कुछ कंटेंट जनरेट होके आ रहा है. सो ना वैरायटी कहाँ से होगी? एक तो हमने फ्रेमवर्क देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे हमें डिफरेंस मिल जाएगा. And now potentially you will be able to generate like hundreds of different variations of the same outcome just by tweaking this particular parameter temperature. कि temperature की value आप अलग अलग लो, अलग अलग आंसर्स आपको मिल जाएंगे, right? So summary is this, as you can see, कि अगर आपको पेरिस का कैपिटल क्या है वो पूछना है, तो कोई टेम्परेचर वैल्यू की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट लो टेम्परेचर इज फाइन. सॉरी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस वो पूछना है, तो कुछ आपको जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट आस्क इन नॉर्मल सेटअप. बट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग क्रिएटिव लाइक describe Paris in alternative reality, then it's creative, right? So it has to imagine, right? The model has to imagine. So therefore we must give high value of temperature, maybe 1.5 or 2, right? So then the response will be different, as you can see, right? So these are some examples. इस टाइप के अगर टास्क है तो आपको high temperature use करना चाहिए. Then your write up will look kind of very nice. Let's say आपको jokes बनाने हैं, jokes लिखने हैं आपको, right? Then it's good to use a high level of temperature, because then only it will be unconventional. अगर 0 रखोगे तो क्या होगा कि वो jokes conventional हो गए, जो वेब पेजेस में अवेलेबल है वही रिपीटेटिव हो गए. बट आपको कुछ नया करना है, then you have to give that's why, as you can see, write a poem in style of Shakespeare about AI, right? So we can also try like this कि हम कोई can you mention some of the good poets of India, right? जिनके बारे में, जिनकी poems आपने ज़्यादा पढ़ी है, तो we can generate a new poem, right? You can just message in the chat box. I will copy the name of the poet. So I can just say I would like to kind of create a new poem about life, right? And teachers, let's say, please follow the tone and writing style of. So now you can see how so आप काफी बड़े-बड़े लोगों के नाम आपने लिखे हैं. So I am worried कि मतलब ये AI कितना उनको मिमिक कर पाएगा. But let's go with let's say Rabindranath Tagore. Let's say Rabindranath Tagore, and temperature is equal to, let's say, 2. Let's see. You can see.
So it's very nice, as you can see कि ये नदी के किनारे टीचर है और वो जो अपने स्टूडेंट है उनको बोल रहा है कि फ्लो विद द पर्पस, राइट. सो ये काफी अच्छा मतलब उसने बनाया. बट ये इतना अच्छा क्यों आ रहा है? बिकॉज एज यू कैन सी कि हमने टेम्परेचर एक तो 2 रखा है, along with that we have also given this particular example, right? Ideally हमें पूरा create framework follow करना चाहिए था तो और अच्छा response था, but it's fine. So you can appreciate it, right? You can read this and it's making sense. हेलो, गुड yes. मॉर्निंग सर. हाँ, I'm yes. सोनाली काबरा. हाँ. सर जैसे आपने बताया कि भी पोयम हम मतलब किसी ऑथर के ऊपर बना सकते हैं, तो वैसे कोई टीचर की कुछ क्वालिटीज के ऊपर हम बना सकते हैं, जैसे कोई हमारे कॉलेज के टीचर्स हैं and he is Of course, expert. it's a very nice use case और टीचर्स डे पे तो बहुत ही अच्छा आपने सोचा है. हाँ, yes sir, जैसे कि वो he is expert in English. आप बता दो अपनी क्वालिटीज, हम बना देते हैं. मेरी तो नहीं, बट किसी और टीचर्स की मैं बता सकती हूँ. Ah, sure. You can just write it down, so we will be able to create a nice poem. We'll say assume a role of and you want poem in Hindi or Marathi or English? कौन सा language? Hindi. Okay. जैसे he is expert in English, he is a nutrition diet. Okay. And he is Okay. पर वो एक बार आप मैसेज में लिख दो. I was thinking about the prompt more. So मैं तो अभी prompt पे फोकस कर रहा हूँ. आप क्वालिटीज उसमें लिख दो चैट बॉक्स में, तो मैं वहां से हिंदी पोएट. सो अब हमने रोल चेंज कर दिया, मतलब अब मैं क्रिएट फ्रेमवर्क पूरा हम फॉलो करेंगे एंड देन वी विल जनरेट अ पोएट, राइट. सो दैट विल बी द आइडिया. सो पहले हमें कैरेक्टर देना पड़ेगा. सो कैरेक्टर में हमने ये बोला है एज्यूम रोल ऑफ एन इंडियन हिंदी पोएट हु ओके. सो यहाँ पे आर्टिकल की भूल हो गई. ओके फाइन. हिंदी पोएट हु राइट्स one can say easy to read but impactful Hindi poems, right? Okay, ठीक है, इतना चलेगा. Take inspiration from all the Hindi poems written on teachers, ताकि अपना ज्यादा सेंसिबल आया आंसर, राइट. सो दैट इज एग्जांपल पार्ट. आई वांट यू टू डिजाइन और जनरेट नाइस हिंदी पोएम कैप्चरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड टीचर विथ क्वालिटीज. वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपके चैट में से. ओके. ऑफ कोर्स उस पे भी आएंगे, डोंट वरी श्रुति जी, हम सारी बातें करेंगे. ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो उस पे हम चलेंगे. सो कैन यू मेंशन सम क्वालिटीज आप बता रही थी? ओके सर. ओके. सो डोंट वरी, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए मैं सीधा एक आपको लेट्स से आपको एक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. सो हाउ वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ क्रिएट फ्रेमवर्क. साइड बाय साइड उसको भी करते हैं. सो इसी का मैपिंग करेंगे. लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट लिखना है हमें. कोई पेपर आइडियली तो आपको अटैच करके बोलना होगा कि ये मेरा पेपर है और उसके ऊपर करो, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिख के दो. बट दिस इज कॉल्ड जेनरिक आइडिया. मतलब ऐसा नहीं कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका यूज करेंगे हम डायरेक्टली, बट दिस इज जस्ट टू काइंड ऑफ गेट सम इनसाइट्स. ओके. सो अब मैं क्या करूंगा, assume the role of established researchers. ओके. जो हम रोल चेंज कर देंगे, पोएट नहीं चाहिए अब हमें, क्या चाहिए, रिसर्चर चाहिए. लेट्स से पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो पहले काम क्या किया वो पहले फिक्स करना पड़ेगा. लेट्स एज्यूम कि हमने चैट जीपीटी को डिजाइन किया है, लेट्स से, और हम अब उसका एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि क्या क्या चीजें चैट जीपीटी में ऐसी है जो दूसरे में नहीं है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट. रिसर्चर इन एलएलएम्स, राइट, who writes easy to read but formal tone, right, with formal tone,
and impactful. Of course, we can continue with this, but not Hindi poems. But this time we are going to talk about research articles, right? For research papers, from where we can take inspiration? Can anyone tell me? Take inspiration from all the abstracts of famous or renowned, I can say, transactions or Q1 journals. Let me keep it simple. Let's say Q1 journals of the domain. Right? So इसे और ज़्यादा उसको insights मिलेगा. I want you to generate nice की जरूरत नहीं है. I want to generate formal abstract about capabilities of ChatGPT, right, as compared to other LLMs. Okay, and now ideally I should also give more details. कि एक अच्छा abstract होता है, उसमें क्या होता है? Please follow the template as follows. तो मैं जो अच्छा abstract होता है, usually we start with some context, right, or motivation why this work is relevant, right? पहले वो करेंगे. Then we will talk about our contribution, right? So पहले हमने problem setup बोल दिया कि क्यों ये जरूरी है. Then actual work, right? क्या work किया, right? So which is nothing but kind of contributions. So हमने बता दिया कि हमने let's say ये नया model generate करके दे दिया. Then that is not enough. How it's better as compared to state of the art, right? That's the next thing. And then we are going to talk about next क्या होगा? इस state of the art से better भी बता दिया. Then give some generic implications or applications or future work, right? कि ये हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि इनसे अच्छा है, but और भी ये सारी चीजें, right? And ensure that you capture this in only 250 words, right? 250 to 300 words, क्योंकि ये एक लिमिट भी होती है. तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि whenever if you can imagine that what all the qualities must be there in your abstract, then you will be able to kind of generate it very nicely. Okay, and यहाँ पे मुझे temperature कुछ value देने की जरूरत नहीं, because this is a very formal thing. तो जो fact based ही होनी चाहिए, right? So this is fine. So I can just give this prompt and let's see, right? So you can see कि मैंने जो बोला वैसे ही वो start कर रहा है कि LLM का क्या हो रहा है, LLM से क्या फायदा है, right? Reasoning में काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन में काम आता है. फिर चैट जीपीटी के बारे में बताया कि हमने चैट जीपीटी डिजाइन किया है, तो उसका क्या क्या कैपेबिलिटीज है, कौन कौन से डोमेन में काम में आता है. फिर हमारा जो स्टडी है उसमें हमने क्या क्या किया, कि ये सारी चीजें हमने की, और जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेनली हमारी ये 3 कंट्रीब्यूशन है, और हमने ये सारी चीजें बताई हुई है, राइट? सो कंपेयर टू स्टेट ऑफ द आर्ट क्यों बेहतर है वो अब यहाँ पे बता दिया. ये एडवांटेज है चैट जीपीटी का, राइट? So extended conversations, improved transparency in instruction following and data robustness, right? And ये advantage की वजह से ये बेहतर है. और उसके अलावा क्या है, generic one can say contributions और features, ये सारी चीजें भी वो support करता है जो दूसरों में नहीं है, right? So this is how you can, वो साथ में ये भी बता रहा है कि हम approximately इतने words हैं इसमें. So this is how you can utilize it for so why I am starting with generic, because audience is diverse. So इसलिए कुछ generic examples हमने start किया है. But of course this is applicable, very much applicable to all the formal or informal tasks which you can imagine. So I am focusing more on how to write, not on what to solve, because there can be hundreds of problems, but the technique is just one. So if you learn technique, then automatically the problems are kind of solved, right? So fine. So now if I continue with this prompt, right, which is kind of with respect to temperature. So if I go to excuse me, sir. Yes. Sir, may I ask? Are you using a paid version, sir? It is not. I'm using paid version, but you will get equally good response for even free version. Or maybe what you can do, you can just copy this, and we can just compare this with maybe Gemini also. Because as you can see, thinking, create, all these options are coming in your system. But you don't need to worry. Even if you give the same prompt to Gemini,
the response will be more or less of same level, right? So if I give the same thing, But we need of course, to log in it, isn't it, sir? what? Log in it. We have to create a. You have to, of course, create an account for Gemini. So I will share this link with of Gemini also. So here, instead of ChatGPT, ChatGPT, sir, in ChatGPT 5 also it is not coming. It's giving something like the ChatGPT Go upgrade. These options are given. so therefore I am showcasing you this free platform, right? So here I am going to talk about Gemini. ये लिख दिया मैंने. Okay. So now let's see. Okay. I will ignore this. ये अभी जरूरत नहीं है मुझे. This is fine. Oh, ये image capabilities पे आ गया. Sorry. So let me go back again and capabilities of Google Gemini. This time I will change the topic क्योंकि ये platform Gemini का है तो वो अपने बारे में ही अच्छा बता पाएगा. Fine. Let's see. Of course we could write ChatGPT तो भी वो response तो देता ही. But this is just to showcase there is no limit, right? You can also use DeepSeek. DeepSeek is also free. Gemini is free, but I recommend Gemini because it has many other features also. Right? Okay, sorry. This is unfortunately वो दूसरे buttons click हो गए, इसलिए वो ज़्यादा detail में चला गया. But let me do this one more time. Finally, वो सही answer देगा. So let me stop this. Maybe I can just click on new chat. And now I will paste this and I will ensure that I don't click here and there. I want normal response. Okay. So ये normal response इसमें आ जाना चाहिए. I will just press enter. Let's see. Okay. And meanwhile, let me complete this. ये काफी टाइम से ऐसे पेंडिंग चल रहा है. कुछ qualities मैम ने अभी तक बताई नहीं. I am just recalling. Maybe I can just say extraordinary teacher. And maybe nutrition, if I can recall, and always maybe sincere, right? Good human being, right? जो अच्छी teachers की quality होती है वो सारे डाल देते हैं. Knowledgeable, right? Fine. Right. But the important thing is temperature is equal to 2. Okay. And let's see. Fine. Meanwhile, हम इसका भी चेक करते हैं ये क्या हो रहा है. अरे ये रिसर्च में क्यों चला जा रहा है? I don't want research. Okay, fine. Try without deep research, right? Then it should give me instantly because I don't want to spend a lot of time over it. Right? So you can see it's giving the response, but यहाँ पे थोड़ा सा issue ये हुआ कि इसने words को सही से capture नहीं किया. So this is common issue with respect to LLMs. So next I am talking about the same thing कि हम कैसे इसको resolve करेंगे कि जो ये जो kind of issue आ रहा है in terms of words, how we can ensure that we get proper response with respect to words also. Okay. So यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं कि ये कविता आ गई, right? गुरु की छाया. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Maybe I will share this, or maybe I can just share this on the chat box. So if you want, you can use it. Yes, sir. Okay. Yes. आप सबके लिए ही है ये कविता, तो I would like to dedicate this to you, all of you. कुछ nutrition वाला extra आ जाएगा, but all of you have nutrition of knowledge, so it's fine. And today Teachers Day, sir, so it is very useful. हाँ, yes, of course. So ये आगे का कुछ जो काम का नहीं वो मैं हटा देता हूँ. Okay, fine. So as you can see how it's it's kind of relating that nutrition part over here. Okay. So Poshak and Path Pradarshak, right? So fine. Okay, so now we will change something because so far I have talked about only one thing. One small point is remaining. So let me try that particular one point first, and then I will take. I don't need break actually, but the organizer had requested, so I will take that particular break just to make sure that my video works.
because unfortunately video में कुछ error आ गया because I was also using OBS simultaneously. So I will ensure that it remains on for the next 3 sessions. तो वो थोड़ा हम देख लेंगे. Meanwhile, let me talk about that issue with respect to one can say length. Length को कैसे control किया जाए? So now I will talk about one more parameter which will control length of the responses. Okay. So what I'm going to do, I will start with this next, and of course you can try this with. And let me go to the standard one can say one below level of model. Let's go with 4O only. And what I'm going to do, just observe this. I will just say write something about let's say teachers. Okay, good teachers or maybe extraordinary teachers, good teachers, or call now. Okay, and I am giving just one parameter. Let's say tokens is equal to 50. Okay, and let's see क्या response आ रहा है. ठीक है? So 50 tokens. Can you guess what it means? 50 tokens means roughly one sentence. Now you can imagine what will happen if I give same prompt but with token values, let's say 500. Right? So you can guess that instead of one sentence, this time we are going to get roughly more than roughly 10 to 15 different sentences, depending upon the length of the one can say 10 times kar diya na, right? So like that we are going to get the response. So many of the times this is also kind of one nice way of maintaining, or one can say controlling the length of our response, right? So let me try this with respect to Google Gemini, and let's see whether it can follow it properly or not, right? So what I'm going to do now, that roughly what happens that if I showcase summary of this tokens, then you will be able to appreciate what I'm trying to say. So why I'm doing this? Because internally ChatGPT can understand, or other LLM models can understand language of tokens, not language of words. So if and one token is roughly equivalent of 4 one can say characters, right? So if I say that, if I assume that all the words are of roughly 5 or 4 characters only, then depending upon number of words, I can convert it into number of tokens roughly. So if I want very short response, then I will say maximum tokens is equal to only 50 to 100. If I want moderate length response, then I will say tokens is in this range. And for essay type response, I can say tokens is equal to 1500 plus. Right? So depending upon what should be the length of my outcome, I can kind of fine tune it with the help of this particular parameter, which is called tokens. So let me see, let's check whether this works with Gemini or not. So I will just say regenerate with maximum tokens is equal to, let's say, 400. Okay, and let's check the difference between previous response and this response. But I can't sense much difference with respect to previous and this. So let me recheck, means revise this with token values even less. Let's say 300. So then ideally it should give shorter response, right? But it's not working with respect to Gemini. So that we have verified. Now let's go back to ChatGPT, and we had some response over here, right? And this is fine. This is anyway quite short, but let me make it even shorter by saying regenerate with tokens is equal to just 100. Okay. Okay, so sorry, unfortunately again this model was there, but let me skip that additional thinking. I don't need it. So now, as you can see, it's giving me just one line because number of tokens are very less, right? So 100 is roughly 1 or 2 sentences will come, and it's giving me just one sentence, and the answer is because one kind of remaining token it has used for this kind of reasoning part. That's why it's like this. So you can sense that how tokens can also kind of enhance your response. Many of the times you can even though if you don't use this very frequently, you can get sense many of the times whenever you want only response in one sentence, then at that time you can go with this kind of tokens where you can provide very small value of tokens, so that kind of you get what you want, and then too very quickly. Okay? So that's the idea of token.
So any questions? I will take couple of questions and then we'll break for maybe 4 or 5 minutes if needed, and then we'll continue. If not 4 or 5, then just 2 minutes just to ensure my webcam works fine, and then we'll continue. So and I'm just checking chat. Okay. सर 5 minutes break लेंगे? Okay. Yes, we can take 5 minutes break. Yes. Yeah. Okay, sir. Okay. Sure. Okay. So meanwhile, I will. Friends, don't leave the meeting, friends. Just take 5 minutes refreshment break. Right, sure. But I will leave the meeting and join back because I just want to turn on my webcam. So is it fine? Okay, sir. No issue. Yes, please. Okay. And I will take 10 extra minutes if organizer permits, because I was late and Yes, in sir, between no also issue. I talked about something complexity आप कर and लीजिए ठीक. participants को already पता था, तो वो चीज हाँ, sir. रिपीट हो गई, तो कुछ और बता देंगे हम. ठीक. Okay. Excuse me, ma'am. Preeti ma'am. हाँ बोलिए मैडम. हेलो मैडम, हैप्पी टीचर्स डे. हाँ बोलिए. सॉरी मैडम, मैं थोड़ा 10 मिनट्स लेट हुई. थोड़ा पैथोलॉजी के वहाँ मुझे 10 मिनट्स लेट हुआ था. ब्लड चेकिंग के लिए गए थे, तो क्लास में स्टार्टिंग में मैं लेट हुई मैडम. सॉरी मैडम. ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू.